The first question for the day: if radius of Earth is r, height, then the height h at which the value becomes of g becomes 1/4. मतलब basically gh should be g by 4. और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है यहाँ पे? gh by g equal to 1/4. 1/4 तो 1 minus 2h by r या फिर r plus r upon r plus h square. R upon r plus h whole square 1/4. तो r upon r plus h equal to 1/2. So 2r equal to r plus h. So you have h equal to 2r minus r, that is equal to r. Option number C. Good. Next question. So I hope all of you have done this correctly. अगला क्वेश्चन: the acceleration due to gravity near the surface of a planet of radius r and density d is proportional to. We have done this so many times now. G equal to g by r square into mass. Mass है volume into density. Volume है 4/3 pi r cube और density is d. तो ये सब कैंसल हो गया, ऊपर बचा r और d, बाकी है कांस्टेंट. तो g इज प्रोपोर्शनल टू r इनटू d. ऑप्शन नंबर सी. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन: two bodies of masses m and 4m are placed at a distance r. So you have two bodies of masses m and 4m. m and 4m. The mass of first body is m, mass of second body is 4m, right? Distance कितना है? r. So distance between these two is r. आपको बोला है the gravitational potential at a point on the line joining them where the field is 0. कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x. तो ये बचा हुआ डिस्टेंस r माइनस x. फील्ड 0 मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0, या तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. अगर आपको याद होगा, यू रिमेंबर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी IG हमने डिफाइन किया था, उसका इक्वेशन था G कैपिटल M मतलब सोर्स मास अपॉन r स्क्वायर. तो ये जो P पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, इस P पॉइंट पे ये जो पहला मास है M1, इसका फील्ड इंटेंसिटी, और जो दूसरा मास है M2, इसका फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल. So here you will write g m1 upon distance x, x का square equal to g m2 r minus x का square. Cancel and cancel. m1 is m, m1 is m upon x square and m2 is 4m upon r minus x का square. Cancel and cancel. Taking square root, 1 by x equal to 2 upon r minus x. Cross multiply. R minus x equal to 2x. Shift. R equal to 3x. 3x. तो x is equal to r by 3. करेक्ट. अब आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना था, तो पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ गया. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन distance. Do you remember gravitational potential is minus g m, right? तो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. The gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field 0 is. और आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शंस में you have small m. तो अभी actually this is not correctly written, क्योंकि बोलना चाहिए gravitational potential at a point. ठीक है. Then how do you find out potential? Potential due to first plus potential due to second. Potential due to first is minus g m upon distance was x. Minus minus plus g 4m upon distance is r minus x. So v equal to, take out gm outside. क्या बचा? minus 1 by x plus 4 upon r minus x. So you have v equal to gm 4 upon r minus x minus 1 by x.
अब वाई आई हैव फाउंड दिस आउट, क्योंकि आंसर में आर था। एक्स दिखता है क्या हमको? नहीं। तो फिर एक्स की जगह पे डालोगे आर बाय 3, तो पुट आर बाय 3 हियर। और आंसर वैसे भी नेगेटिव है, माइनस है ना आंसर यहाँ पे। गुड। देन जी एम 4 अपॉन आर माइनस आर बाय 3 माइनस आर बाय 3। व्हाट इज आर माइनस आर बाय 3? 2r by 3. तो v equal to gm 2r by 3 4 और 2r by 3 1 जा एंड 2 जा, तो 6r, और यहाँ पे कितना है 3 by r। तो यू हैव v equal to gm 6 minus 3 3 by r। तो v equal to v 9 कैसे आ गया वहां पे? यू सी, वेट अ मिनट, पोटेंशियल इज नेगेटिव gm बाय डिस्टेंस, नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, देन दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, करेक्ट? राइट। कब पॉजिटिव? व्हेन यू टेक आउट नेगेटिव साइन आउटसाइड, नेगेटिव साइन आउटसाइड निकाल लिया तो ये आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव। गुड। तो सिर्फ यहाँ पे आएगा बीच में पॉजिटिव, एंड you will be writing this as minus gm. How much is this? अभी किया ना सोल्व आपने, 2r by 3 और ऊपर 4, कितना आया था ये? 6 by r एंड प्लस 3 by r, तो 9 by r। तो ये आ गया आपका माइनस gm 9 by r, ऑप्शन नंबर डी। ये 2011 का क्वेश्चन था। Next question. Mass of a spaceship is 1000 kilogram. It is to be launched from the Earth's surface out into free space. The value of G and R are 10 meter per second square and 6400 kilometer respectively. The required energy for this work will be. कहाँ से लॉन्च करना है? अर्थ की सरफेस से, राइट। और कहाँ भेजना है? आउटर स्पेस में। तो आउटर स्पेस में जब आपको भेजना होता है, मतलब वहाँ, यस, एस्केप वेलोसिटी। सो इन सिंपल टर्म्स, द वर्क दैट यू नीड टू डू इज, रेस्ट पे था, उसको मूव करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना देना पड़ेगा? हाफ एम वी स्क्वायर, तब एस्केप होगा ना। इफ यू गिव वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप, तब एस्केप होगा हाफ एम। और मैंने आपको ये डिटेल भी बताया था कि हाउ डज, क्योंकि द स्पेसशिप इज एट रेस्ट, you have to move, you have to do work, this work will appear as kinetic energy. So half mve square, what is ve? root of gm by r, 2 भूल गए ना, 2 gm by r, r किसका? अर्थ का, राइट। रूट था और स्क्वायर था, तो गया गया, गया और गया, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर इज कैंसिल्ड एंड कैंसिल्ड। देन मास इज 1000, this is 1000 gm by r। अब ये gm by r आपके पास वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपको वैल्यू दिया है g का, कितना दिया है? 10। तो इफ यू रिमेंबर gm होता है gr स्क्वायर, तो gr स्क्वायर बाय r, कैंसल एंड कैंसल, तो ये आ गया आपके पास mgr। तो वर्क डन W is m is 1000, 10 power 3, G is 10 और R is 6400 किलोमीटर। डू नॉट फॉरगेट किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर 3 और लिखना पड़ेगा, तो 10 पावर 3 और लिखना पड़ेगा। 10 पावर 3, 10 पावर 3, 6 और 1 7, 7 और ये 2 9, तो 64 इंटू 10 पावर 9, 6.4 इंटू 10 पावर 10, खत्म। 64 इंटू 10 पावर 9 आया ना। तो अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूं तो यहाँ पे एक मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो 6.4 इंटू 10 पावर 10 जूल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, energy required to move a body of mass m from an orbit of radius 2r to 3r। ये हमने इस टाइप का पहले करके रखा है, मैं तुमको वापस बता देता हूँ। कुछ नहीं है, एक बॉडी है जो पहले था
2r ऑर्बिट डिस्टेंस पे, उसको भेजना है 3r ऑर्बिट डिस्टेंस पे, राइट। तो r1 आपको दिया है, r2 आपको दिया है। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, हमने कल ही क्वेश्चन वहां पे सिर्फ ऐसा था एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो क्या करेंगे, टोटल 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 फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब वर्क डन इज टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r final which is r2, correct, r2 minus of minus plus g capital M small m upon 2r1 2r1। अब यहां से g कैपिटल M स्मॉल m निकाल लो आउटसाइड, साथ में 2 निकालना चाहो तो वो भी आउटसाइड, 1 by r1 minus 1 by r2। बट r1 की वैल्यू आपको दी है, कितने दी है 2r, और r2 कितना है 3r, तो 3r minus 2r is r, और अपॉन 6r square, तो you will have this as g capital M small m by 2, this is r upon 6r square, cancel and cancel, correct। Now how much is this 12, तो g capital M small m by 12r। अब ऐसा ऑप्शन है क्या, पहले वो देखो, है सिर्फ r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर क्यों आया, कहां से आएगा r स्क्वायर, आएगा क्या एनर्जी के इक्वेशन में r स्क्वायर आता है क्या, नहीं, करेक्ट। हाँ तो फिर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, r स्क्वायर आता है नहीं, तो फिर नहीं आएगा ऑप्शन नंबर ए, बट विदाउट r स्क्वायर। Next question. The kinetic energy needed to project a body of mass m from Earth's surface to infinity is, joke, kinetic energy needed to project, हो गया half mv square, what is ve, root of 2gm by r, ये रूट था और स्क्वायर था, गया गया, what you have is g capital M small m by r, but what is gm, gr square, gr का स्क्वायर m by r, so mgr option number C, that is why I said joke। Next question, a particle of mass 10 gram is kept on the surface of a uniform sphere of mass 100 kilogram and radius 10 centimeter. Find the work to be done against the gravitational force between them to take the particle far away from the sphere। मतलब बेसिकली क्वेश्चन यही है, you are supposed to find out work, मतलब that work appears as kinetic energy। क्वेश्चन वही है जो अभी अभी किया, सिर्फ यहाँ पे अर्थ की जगह पे उन्होंने बोला कि आपके पास एक 100 किलोग्राम का स्फीयर है, मतलब बेसिकली अर्थ का मास जो है ना उसको 100 मान लेना, और जो पार्टिकल है उसका जो मास है उसको मान लो 10 ग्राम। तो इसके ऊपर एक पार्टिकल है जिसका मास है उसको मान लो 10 ग्राम, और इसका कितना है 100 किलोग्राम। 10 ग्राम मतलब 10 into 10 power minus 3 किलोग्राम, मतलब 10 power minus 2 किलोग्राम। क्लियर यहाँ तक, ये तो कन्वर्जन में कोई गड़बड़ नहीं, 10 और ग्राम मतलब 10 power minus 3, तो ये पता होना चाहिए। देन इसका रेडियस भी दिया है, वेरी गुड, आर भी दिया है, कितना दिया है यार 10 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर माइनस 1 मीटर, 10 into 10 पावर माइनस 2 मतलब 10 पावर माइनस 1। ओके, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट वर्क, यही तो है, सेम सेम। तो वर्क डन इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, राइट।
पक्का? दिस इज इक्वल टू हाफ m 2gm by cancel, then m 10 power minus 2 g 6 point into 10 power minus 11. मास कितना? 100. मास ऑफ दैट स्पीयर 100. 10 पावर प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 गया. रेडियस कितना है? -1. ऊपर जाएगा तो 6.6 into 10 पावर -10 जूल. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. जोक. फास्ट. m0, क्योंकि escape velocity does not depend on mass of the object but depends on mass of earth, m raised to 0. Next question. A planet in a distant solar system is 10 times more massive than earth. 10 times more massive than earth, and its radius is 10 times smaller. Radius is 10 times smaller. Correct. Given that escape velocity from earth is 11 km per second, the escape velocity from the surface of planet will be option B. कैसे? escape velocity अभी हम इतना किए इसके ऊपर कि डायरेक्टली याद होना चाहिए अंडर रूट ऑफ m by r. करेक्ट, राइट. अब the moment you see 10m और r by 10 और ये भी m by r, ऊपर 10 नीचे डिनोमिनेटर में 10 और 10 100 का रूट 10 और ऑलरेडी अर्थ पे होता है 11 into 10. ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. escape velocity from planet upon earth under root of directly proportional to mass of planet, inversely proportional to radius of planet, directly proportional to mass of earth or radius of earth. This is, अच्छा ये मैंने लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट कर लेते हैं. What is MP by ME? 10. What is RE by RP? 10. Right? 1 by 10 बोला तो खत्म, 1.1. Right? तो VP इक्वल टू इसका रूट कितना? 10 और VE कितना? 11. 10 into 11 कितना? 110 किलोमीटर पर सेकेंड. Very good. Question. An Earth satellite of mass m revolves in circular orbit at a height h from the surface of Earth. R is the radius of Earth and g is acceleration due to gravity at the surface of Earth. The velocity of the satellite in the orbit is given by height कितना? h. Right. Earth satellite of mass m revolves in circular, मतलब critical velocity which is under root of vm by small r. Right. आगे आपको बोला है height h है ना, at a height h from the surface of earth. r is radius, g is acceleration due to gravity. velocity कितना हो गया? under root of gm upon r plus h, but gm is gr square upon r plus h. Option number D. Next question. Suppose पहले बता दिया, suppose होता नहीं है लेकिन suppose कर लो. The gravitational force varies inversely as nth power of the distance. वैसे normally gravitational force varies as second power of distance. r square होता है ना, तो r square होता है, बोलते हैं कि imagine it is nth power. Then the time period of a planet in circular orbit of radius r around the sun will be proportional to. अगर gravitational force r square 1/r square नहीं होता लेकिन 1/r raised to n होता, तो time period
of the planet if the planet is in circular orbit of orbital radius r will be equal to what? Proportional to what? मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एक बार किया है, फिर वहां पे आई थिंक nth की जगह पे was 5/2 with a negative sign ऐसा कुछ था. कुछ भी बोल सकते हैं ना, nth पावर बोला है तो n को वो 5/2 भी बोल सकते हैं, -5/2 भी बोल सकते हैं, -3/2 भी बोल सकते हैं. तो हम एक जनरली देख लेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं. तो द आइडिया यार है सर्कुलर बोला है, सर्कुलर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. और कुछ तो है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल. ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मली इज g मास ऑफ, यहाँ पे मास ऑफ सन और स्मॉल m इज मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बोला है r रेज टू n. ओके, और दिस इज mv स्क्वायर बाय r. इसको r रेज टू n मत कर देना, देन कैंसल एंड कैंसल. गुड. तो यहां से इस r को यहां लाओगे न्यूमरेटर में, वहां से नीचे लाओगे तो r-1, तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा? gm अपॉन rn, और ये r इधर गया, इधर आया, फिर नीचे आया, r नीचे आया तो -1 हुआ, -1 हुआ तो n-1. ऑर्बिट कौन सा है? वेलोसिटी कौन सा होगा? क्रिटिकल होगा. वेरी गुड. डू यू रिमेम्बर क्रिटिकल वेलोसिटी? तो ठीक है, चलेगा वो भी, लेकिन वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक चक्कर में कितना डिस्टेंस? 2πr अपॉन टाइम पीरियड, इसका स्क्वायर इक्वल टू gm अपॉन r रेज टू n-1. स्क्वायर 4π स्क्वायर और r का भी स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड का भी स्क्वायर इक्वल टू gm अपॉन r रेज टू n-1. एक काम करो, ये r रेज टू n-1 को यहाँ ले जाओ, r स्क्वायर r रेज टू n-1 अपॉन gm इक्वल टू t स्क्वायर 4π स्क्वायर. गुड. नाउ gm कांस्टेंट, 4π स्क्वायर कांस्टेंट, तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ये r रेज टू n-1 प्लस 2, मतलब कितना? प्रोपोर्शनल टू r रेज टू n प्लस 1. ये t स्क्वायर है. हमें क्या पूछा है? टाइम पीरियड. तो क्या करेंगे? रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लो. तो टेक स्क्वायर रूट r रेज टू n प्लस 1 बाय 2. स्क्वायर रूट लेना मतलब इंडेक्स में हाफ लाना, लेकिन स्मॉल r की जगह पे क्या लिखना है? कैपिटल R, क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस कितना बोला है? कैपिटल R. तो आ गया ऑप्शन नंबर ए. A satellite is revolving in circular orbit at height h from the Earth's surface, और height is less than radius of Earth, मतलब 6400 किलोमीटर से कम है. The minimum increase in the orbital velocity required so that the satellite could escape from Earth's gravitational field is close to. पहले क्वेश्चन समझ लो. ऑलरेडी वो सर्कुलर मोशन में है. Satellite is revolving in circular orbit at height h. The minimum increase in orbital velocity को इंक्रीज करना पड़ेगा. एस्केप करवाना है तो इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो मिनिमम इंक्रीज कितना? तो यू रिमेंबर क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ gm बाय r, राइट? तो व्हाट इज द मिनिमम इंक्रीज? मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था, मतलब डेल्टा वी फाइंड करना है, करेक्ट? लॉजिकली स्पीकिंग एस्केप करवाना है तो कितना होना चाहिए? VE. और सर्कुलर मोशन में तो कितना है? This is the extra velocity that you need to give. But do you remember V was under root of 2? नहीं, under root of 2 times of V.
हाँ, अंडर रूट ऑफ 2 GM/r सही बोल रहे हो आप, यू आर नॉट रॉन्ग, बट डू यू रिमेम्बर कि ये अंडर रूट ऑफ GM/r इटसेल्फ इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ, तो फिर कीप इट सिंपल ना, इतना अगर करोगे तो फिर ढूंढते रहो आंसर। 8 स्टेप थे, हमने ऐसे ही कर दिया इसको। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 VO। अब बताओ, अब बोलो, हाँ ये है GM/r, फिर अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, बट GM कितना होता है, GR², तो GR²/r कैंसल, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, दिस इज रूट ऑफ GR, root 2 minus 1, option number C. And that's it for today. So we'll stop at this question.